Okay. So we'll be talking about the concentration of a solution. See, what is a solution made up of? देखो हमारे पास एक सल्यूट कंपोनेंट है और एक सॉल्वेंट कंपोनेंट है, ठीक है. सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सल्यूट एंड द अदर इज सॉल्वेंट. सपोज सोडियम क्लोराइड इन वाटर, राइट. तो सोडियम क्लोराइड, लेट्स टेक द सल्यूट एज सोडियम क्लोराइड and let's take the solvent as water. So when we dissolve a solute in a solvent, what we get is solution. तो solute and solvent को collectively क्या बोलते हैं? Solution. So what is solution? Solution is made up of solute and a solvent component. Now what is a solute? Generally solute हम उसको लेते हैं that component of solution which is present in lesser amount, right? So that component of solution which is present in lesser amount, which is present in lesser amount, ठीक है. Out of the two components, the one which is in lesser amount is the solute component. And generally solvent किसको बोलते हैं? Solvent हम बोलते हैं उस component को जो ज्यादा amount में present है, ठीक है. That component of solution which is present in more amount or larger amount, that is called as solvent. For example, if I give you, अभी हमने NaCl in water लिया, ठीक है. इसी तरह से suppose if I take 20 ml of ethanol in 60 ml water, ठीक है. So suppose if I dissolve 20 ml ethanol in 60 ml water, then which one is the solute component? Out of ethanol and water, which one is the solute component? Yes? Unmute and answer. Yes, the one which is in lesser amount. 20 ml कम है 60 ml से, ठीक है. तो ethanol क्या होगा यहाँ पर? Solute. Although both are in the liquid state, है ना, that doesn't matter. So components किसी भी physical state में हो सकते हैं. They may be, the solute can be in solid, liquid, gas, in any of the states, and the solvent can also be in any of the three states, solid, liquid और gas, ठीक है. But दोनों में से जो भी component excess है उसको हम बोलेंगे solvent, और जो component lesser amount में है वो हमारा हो गया solute. If I take the other way around, suppose I take 60 ml of ethanol and only 20 ml of water, ठीक है. Suppose किसी ने 60 ml of ethanol को 20 ml water में mix कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा solute component? Now the solute component is water, ठीक है, because water is present in lesser amount and ethanol is present in more amount. So does it normally हम water as a solvent use करते हैं for most of the reactions, but remember हमेशा water solvent हो ऐसा जरूरी नहीं है. तो concept क्या है? The one which is present in lesser amount, be it any component, ठीक है, any physical, be it in any physical state. So जो lesser amount में है वो solute, और जो ज्यादा amount में है वो फिर क्या act करेगा? Solvent, ठीक है. अगर हमारे पास सिर्फ दो components है तो the solution is termed as, like if I have only one solute and one solvent, the solution is termed as binary solution. Generally we deal with binary solutions, but solution में और भी बहुत सारे components हो सकते हैं, ठीक है. Suppose I mix sodium chloride plus sugar. हमने एक ही solution में sodium chloride mix कर दिया, sugar mix कर दिया और water भी है, तो हमारे पास तीन components हो गए, तो उसको ternary बोल देंगे, ठीक है. चार components है quaternary. So depending upon the number of components, the solution may be divided into binary, ternary, quaternary, right? But generally we will be dealing with binary solutions, जहां पर दो ही components है, एक solute component और एक solvent component. अब जो amount of solute in solution होता है
उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करना इज इम्पॉर्टेंट, है ना. उसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं. सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. What do we understand by concentration? The amount of solute present in a given quantity of solution. The amount of solute present in a solution is referred to as its concentration. कितना solute present है. Now this is very important. For example, जैसे क्या होता है जब dehydration होता है तो saline water inject करते हैं, right? Saline water is injected into the body. तो जो saline water का concentration है वो एक specific होता है. That is isotonic with the body fluid, है ना. सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है जो आपका बॉडी के फ्लूइड्स है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है और सेलाइन वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट मस्ट बी सेम. अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आता है सो दैट मे लीड टू स्वेलिंग ऑफ द सेल्स और एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस. आइदर द fluid may enter into the cell or the fluid may come out of the cell if there is some kind of concentration difference. So concentration is very important. अब जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है कितना प्रेजेंट है वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं concentration. So there are various methods to express the concentration of a solution. Various methods to express concentration of a solution. ठीक है. So I hope you're getting this. So amount of solute, knowing कितना solute present है एक particular solution में, है ना, उसको पता करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे methods हैं. तो we will see the methods one by one. So first is mass percentage of a component. See, we are talking about two components. हमारा जो solution है उसमें एक component A है और एक component B है. ठीक है. So let's take B component अपना solute है और A component solvent है. So एक solution है जिसमें दो components है A and B. तो अगर हमने express करना है कितना solute है particularly, we can also express with respect to solvent. But अगर हमने find करना है कितना solute है, so mass percentage of component B will be equal to mass of component, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है. परसेंटेज है ना, परसेंट मींस विद रिस्पेक्ट टू 100. सो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. फॉर एग्जांपल हमने 20 ग्राम्स B डिसॉल्व किया 80 ग्राम्स A में. ठीक है. सपोज B आपका कोई सॉल्यूट है. 20 ग्राम्स ऑफ A, 20 ग्राम्स ऑफ B इज डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम्स ऑफ वाटर. ठीक है. हमने क्या किया, 20 ग्राम कोई सॉल्यूट B है उसको डिसॉल्व किया 80 ग्राम वाटर में. तो अब उसका मास परसेंटेज पूछ रहे हैं. Now if you see it through unitary method, तो unitary method के according क्या होगा, unitary method के according 80 grams of the solvent. ठीक है. ये यहाँ पर जो 80 grams है वो क्या है, solvent है, और 20 grams क्या है, solute है. तो total mass of solution कितना होगा, क्योंकि solution किससे बना है, solute और solvent से. So total mass of solution here is equal to mass of solute प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही सॉल्यूशन बना है. सो 20 ग्राम सॉल्यूट है एंड 80 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट. सो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम्स. राइट. व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम्स. समझ आ गया. तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर कितना बन रहा है, 100 ग्राम्स. राइट. सो 100 ग्राम्स क्या है, द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से.
So we can say 100 gram of solution contains 20 grams of solute, है ना. तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? What will be the percentage then? Mass of solute is 20. Total mass of solution is 100. So 100 cancels out. कितना परसेंट बोलेंगे? 20%. 20% का मतलब है that 100 gram of solution contains 20 grams of solute, है ना. What do we understand by 20%? That 100 grams of solution contains 20 grams of solute. 100 grams of solution contains 20 grams of solute. This is the meaning of 20%. इसी को एक्सप्रेस करने, इसी को लिखने का एक और तरीका होता है. So in the question usually it is given like this: 20% W by W, mass weight by weight. ठीक है, क्वेश्चन में कैसे दिया होगा? 20% W by W मीनिंग मास बाय मास. अब इसमें 20 प्रेजेंट है 100 में, तो आपने ये ध्यान रखना है जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो इस तरह से दिया होगा 20% W by W. Suppose they give you 20% W by W aqueous sodium hydroxide solution. ठीक है, अब 20% aqueous sodium hydroxide solution दिया है मास बाय मास. W by W का मतलब क्या है? मास परसेंटेज दिया है. ठीक है, या तो 20% W by W लिखा होता है या फिर 20% by weight. It means the same. 20% by weight दिया है या 20% W by W, this means the same. Weight by weight मतलब mass percentage दिया है. तो इसका मतलब क्या है? Aqueous means water is the solvent. Whenever there is this word aqueous, इसका मतलब क्या होता है कि water solvent फॉर्म में प्रेजेंट है. नाउ यहां से हमने क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है? 20 grams of sodium hydroxide that is solute is present in 100 grams of solution. तो हमें यहाँ से mass of solute पता चल गया और mass of solution पता चल गया. ठीक है, 20% W by W का मतलब क्या है? 20 grams of solute that is sodium hydroxide is present in 100 grams of solution. Is that clear? So mass of solution is known to us. Mass of solute is also known. तो अगर हमें solution और solute का mass पता है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? Solution और solute का अगर mass पता है तो we can find the mass of solvent. Since mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent, so if I know the mass of solution that is 100 and I know the mass of solute that is 20, so I can find the mass of solvent, which will be 100 minus 20, that is 80. So mass of solvent from here can be calculated, that is 80 grams. ठीक है, तो मास परसेंटेज मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है. राइट. अब जैसे हमने मास परसेंटेज लिखा उसी तरह से हमारे पास होता है वॉल्यूम परसेंटेज. मास की जगह क्या लेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज. यूजुअली सम ऑफ द सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म लाइक एथेनॉल, है ना, तो वहां पर हम वॉल्यूम एक्सप्रेस करते हैं इंस्टेड ऑफ मास. सो अगर आपका सॉल्यूशन, आपका जो कंपोनेंट्स है वो लिक्विड फॉर्म में है, सो वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज. सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. Now this is expressed as 20% V by V. प्रीवियस केस में हमने क्या किया? मास बाय मास को लिखा है ना, वेट बाय वेट. इस केस में V by V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर आपको सिंपल दिया होगा 20% बाय वॉल्यूम. V
V by V या आपको लिखा होगा 20% by volume. Suppose they give you 20% by volume of aqueous ethanol solution. aqueous ethanol दिया है, ठीक है, या इथेनॉल सोल्यूशन दिया है. तो जब भी आपको सोल्यूशन दिया है एंड दे हैव नॉट मेंशन सॉल्वेंट, जनरली वी टेक इट एज वाटर. ठीक है, अगर आपको सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो क्या लेना है, वाटर. अदरवाइज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि क्या सॉल्वेंट है. अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है सो इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. सपोज दे गिव यू 20% बाय वॉल्यूम और 20% V by V aqueous ethanol solution. Now what does this mean? अब यहाँ वॉल्यूम की टर्म्स में इंटरप्रेट करना है. It means that 20 ml of solute in this case is ethanol, is present in 20 ml of solute, that is ethanol, is present in 100. लेकिन क्या वॉल्यूम है, सो ml लेंगे. वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मिलीलीटर्स. ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं. So 20 ml of solute is present in 100 ml of solution. So 20% means 100 में 20 है. 100 क्या है, वॉल्यूम, और 20 भी क्या है, वॉल्यूम. तो ध्यान रखते हैं कि दोनों ही वॉल्यूम्स है. सो वॉल्यूम की यूनिट्स हमने यूज करने हैं. सोल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है और सोल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है. दोनों का ही वॉल्यूम, इट इज वॉल्यूम परसेंटेज. सो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन इज गिवन. ठीक है, सो 20 ml of ethanol is present in 100 ml of solution. This is the meaning of 20% V by V. Likewise, the next method or next formula is, second हो गया. ठीक है, पहला था mass percentage, mass by mass. The second is volume percentage, volume by volume. The third one is mass by volume. ठीक है, the third is mass by volume percentage. Mass by volume percentage of a component. अब इसमें क्या है, हम कंपोनेंट का मास ले रहे हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ कंपोनेंट इज टेकन एंड सॉल्यूशन का क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम. So mass of component divided by total volume of solution. ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे, मास के लिए W, वेट और मास यहाँ पर आपने सेम मान के चलना है. ठीक है, सो W by V, W फॉर वेट एंड वॉल्यूम के लिए V. तो मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है, सो वी राइट इट लाइक दिस 20% W by V, या यहाँ पर दिया हुआ 20% मास बाय वॉल्यूम. अब अगर आपको क्वेश्चन में 20% W by V दिया है तो ये ध्यान रखना है 20 in 100, तो कंपोनेंट का मास लेना है. तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम्स. सो जो भी आपका सॉल्यूट है उसका 20 ग्राम प्रेजेंट है. ठीक है, सो ध्यान रखना है मास बाय वॉल्यूम में मास ऑफ कंपोनेंट लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो मास ऑफ कंपोनेंट विल बी टेकन एज 20 ग्राम्स बिकॉज यूनिट ऑफ मास विल बी टेकन. सो ये ग्राम्स में आ जाएगा. 20 grams of solute is present in 100 ml of solution. तो solution का हमने वॉल्यूम ही लेना है. ठीक है, solution का क्या लेना है, वॉल्यूम, और solute का क्या लेना है, मास, क्योंकि ये क्या परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम. सो मास ऑफ solute is to be taken and volume of solution has to be taken. मास का यूनिट क्या लेंगे, ग्राम्स. जब हम स्मॉलर यूनिट्स यूज करें तो दोनों के स्मॉलर यूनिट्स यूज करेंगे. ये ग्राम्स में लेना है और ये मिलीलीटर. यू कैन नॉट टेक ग्राम्स पर लीटर, वो फिर डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर्स में ही लेंगे और मास ग्राम्स में ही. अगर आप ग्राम पर लीटर लेते हो देन द मीनिंग चेंजेस, है ना. तो वो जो मेथड होता है उसका फिर डिफरेंट हो जाता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है. तो जब हम मास बाय वॉल्यूम इन ml ले रहे हैं तो that is called as mass by volume percentage of a component. Right? अब इसी में ही स्ट्रेंथ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को स्ट्रेंथ के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं.
strength of a solution. There's a very slight difference. See, what is the formula of strength of a solution? Strength of a solution क्या हो जाएगा? Same formula, बस थोड़ा सा फर्क क्या है? Mass of component or solute divided by volume of solution in liters. ठीक है? So how do we express strength of a solution? Another method. तो यहाँ पर mass of component present in 1 liter of solution. How do we define strength? It is defined as the amount of solute present in 1 liter of solution. ठीक है? 1 लीटर में कितना है? यहाँ पर तो वॉल्यूम हम क्या ले रहे हैं मिलीलीटर्स में, लेकिन यहाँ पर 1 लीटर में कितना है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर्स में है, सपोज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन मिलीलीटर्स, तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए वील हैव टू डिवाइड बाय 1000. ठीक है, मतलब इसको डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इन दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस देखो. यहाँ पर वॉल्यूम हमने मिलीलीटर्स में लिया, मास ग्राम्स में. यहाँ पर भी हम मास ग्राम्स में लेंगे, वॉल्यूम मिलीलीटर में, लेकिन यहाँ इंटू 100 है और यहाँ इंटू 1000 है. सो दैट इज द डिफरेंस. हियर इट इज परसेंट, परसेंट इज विद रिस्पेक्ट टू 100, लेकिन यहाँ पर है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर. So if the volume of solution is in milliliters, तो उसको liters में convert करने के लिए 1000 से multiply करेंगे ऊपर, right? So formula में थोड़ा सा फर्क है. यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि 100 ml के अंदर कितना solute है, right? ये जो information है 20% W by V, this means 100 ml of solution में कितना solute है, जबकि ये हमें बता रहा है 1000 ml, because 1 liter is equal to 1000 ml. 1000 ml सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, राइट? देखो, मैं जस्ट रिपीटेड. एज पर दिस इंफॉर्मेशन, राइट, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि 100 ml सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कहां से मिला? 20% W by V सोल्यूशन से. 20% W by V aqueous solution of जो भी सोल्यूट है, सपोज ग्लूकोज. सो वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट है. अगर हमें पूछा है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सेम सोल्यूशन, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन क्या है? 20% W by V aqueous solution of ग्लूकोज. इसका स्ट्रेंथ निकालो, है ना? तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 100 ml सोल्यूशन के अंदर 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, और स्ट्रेंथ का मतलब है 1 लीटर में कितना है. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. तो 1 लीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ml. अगर 100 ml में 20 है, तो 1000 ml में कितना होगा? 20 by 100 into 1000. So we have 200 grams of solute present in 1000 ml या 1 liter. तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 200 ग्राम्स पर लीटर, मीनिंग 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है? 200 ग्राम्स. Is this clear? Right? Okay. So likewise, let's do one more question. Find the strength of of 20% W by V aqueous solution of urea. Or let's take it as 10%. 20 पहले कर ले. Let's take it as 10%
W by V aqueous solution of urea. So what is the information that we are getting from this 10% W by V? What does this mean? W मतलब mass of component दिया है, V मतलब volume of solution दिया है, और volume of solution जो percentage है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लेना है 100 ml. ठीक है, तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन contains how much solute? 10 gram of solute, that is urea in this case, right? So 100 ml of solution contains 10 grams of urea. So 1 ml of solution will contain 10 by 100 grams urea, और 1 liter मतलब 1000 ml. 1000 ml of solution में कितना होगा यूरिया? 10 by 100, जितना 1 का वैल्यू है उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई करेंगे. 10 by 100 into 1000, so that is 100 grams. ठीक है, तो 1000 ml का मतलब है 1 लीटर. 1 लीटर सोल्यूशन में कितना यूरिया प्रेजेंट है? 100 gram of urea is present in 1 liter. So what will be the strength of solution? Quickly answer. $100 grams per liter. ठीक है, जितना सोल्यूट प्रेजेंट है पर लिटर दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ. तो जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है दैट पर लिटर. ठीक है, यूजुअली स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर लिटर. सो 100 grams of urea is present per liter of the solution. Right? Is that clear? 100 grams of urea is present per liter of solution. So that is the strength of solution. Okay. Now let's see the next. Then there is another method to express the concentration. We call it as parts per million. Parts per million method. PPM in short. What does this mean? Parts per million of a component. Parts per million of a component is, we can express it in terms of mass. It is the mass of component upon total mass of solution. ठीक है, parts by mass भी बोल सकते हैं. Parts by mass of component upon total parts by mass of solution. आप सीधा भी लिख सकते हो, mass of component upon mass of solution. Can write it directly as well. Parts by mass of component upon total parts by mass of solution. ठीक है, so mass of component upon total mass of solution into 10 to the power 6 million parts of solution से कंपेयर कर रहे हैं. जब परसेंट की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि 100 parts of solution में कितना सोल्यूट है. जब मिलियन पार्ट्स से हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है. ये मेथड कहाँ यूज करते हैं? जहां पर सोल्यूट बहुत ट्रेसेस में होता है. When the solute is very small amounts, in very negligible amounts, वहां पर हम ये मेथड यूज करते हैं. जैसे क्लोरीन एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर है ना, तो लार्ज टैंक्स में जो क्लोरीन का हम अमाउंट डालते हैं दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट. सो लार्ज टैंक्स कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और उसमें क्लोरीन कितना होता है? इन वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट. तो क्लोरीन का जो पर्पस होता है दैट इज स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. सो क्लोरीन बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में ऐड करते हैं, तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है पीपीएम के फॉर्म में. अभी सपोज करो आपको दिया है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया था. देखिए व्हाट वाज द सेम एग्जांपल. सपोज वी हैव 2% W by W aqueous solution of, suppose 2% W by W aqueous solution of sodium hydroxide.
and we want to express this in ppm. ठीक है, आपको मास परसेंटेज के W/W का मतलब है मास परसेंटेज दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और उसको एक्सप्रेस करना है ppm में. तो कैसे करेंगे? यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2% W/W? फ्रॉम हियर वी नो दैट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये मास परसेंटेज है. 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है? तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 2 gram of solute, that is sodium hydroxide, right? So 1 gram of solution will contain 2/100 gram of sodium hydroxide. अब अगर हमें पता करना है कि मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में कितना है, मिलियन मतलब 10⁻⁶ grams of solution contains, so 2/100 into 10⁻⁶ grams of sodium hydroxide. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, उसको एक्सप्रेस किया ppm के टर्म्स में. मैंने तो 2 लिया है ना, इससे भी बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में सोल्यूट होता है. I've taken 2%. 2 is still not so negligible, but generally the amount of solute is very negligible, जो हम यहाँ लेते हैं. तो हमारे पास क्या बच गया? 2 zeros cancel out. 2 into 10 to the power 4. ठीक है, this much amount of solute is present in million parts of the solution. So this is little significant. Generally the amount of solute is very very negligible. है ना, मैंने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा वैल्यू लिया तो अकॉर्डिंगली वहां भी बिगर वैल्यू आ रहा है. अगर हम यहाँ पर बिल्कुल निग्लिजिबल अमाउंट लेंगे तो वहां पर भी निग्लिजिबल अमाउंट आता है, राइट? सो 10⁻⁶ grams मतलब मिलियन पार्ट्स अगर हम सोल्यूशन का ले रहे हैं तो उसमें कितना सोल्यूट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन. सपोज आवर आंसर इज 3 ppm. ठीक है, सपोज हमने कैलकुलेशन किया और हमारे पास आ रहा है 3 ppm. तो 3 ppm का मतलब क्या है? दैट ओनली 3 parts of solute is present in 3 parts of we can take mass also. 3 grams of solute is present in 10⁻⁶ parts of solution. हम इसको वॉल्यूम की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास की टर्म्स में भी. ठीक है, ये जो पार्ट्स है 3 parts of solute is present in million parts. So 3 ppm का मतलब क्या है कि only 3 parts in million. अब मिलियन कितना ज्यादा होता है, उसमें से 3 parts कितना होगा? बहुत ही नेग्लिजिबल, है ना. सो जनरली इसको हम वहां पर यूज करते हैं जहां सोल्यूट बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में यूज होता है. ठीक है, तो 3 ppm means 3 parts of solute is present in million parts of solution. So we can express this in terms of mass. Generally it is taken in terms of mass, but हम इसको वॉल्यूम की टर्म्स में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं as required in the question. ठीक है, so 3 ppm मतलब 3 parts per million parts of solution. Okay. Then the next method is mole fraction. इसका सिंबल क्या रहता है? जनरली अ सिंबल लाइक x. ठीक है, अ सिंबल लाइक x. So it is the ratio of number of moles of a particular component to total number of moles of solution. It is the ratio of number of moles of a component to the total number of moles, present in solution. Total number of moles of solution. ठीक है, so कैसे डिफाइन करते हैं? मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स. So it is defined as the total number of moles of a particular component to total number of moles of the solution. ठीक है, अब जैसे सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट्स है A एंड B.
A के जो नंबर ऑफ मोल्स है, सपोज दैट इज 2 मोल्स ऑफ A is present and suppose 1 mole of B is present. Let's just assume in a solution we have 1 mole of B and 2 mole of A. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा B का? मोल फ्रैक्शन ऑफ B component will be number of moles of B component divide by total moles. अब टोटल मोल्स के लिए दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स लेने पड़ेंगे. So number of moles of B plus number of moles of A. ठीक है, so mole fraction of B will be number of moles of B component divided by total moles. तो total moles means दोनों component के moles को ऐड करेंगे तो total moles आ जाएगा. Similarly, mole fraction of A component will be number of moles of A component divided by total moles. That is number of moles of A plus number of moles of B. ठीक है, अब जैसे यहां पर है B का कितना मोल है 1, टोटल मोल्स कितना है 1 plus 2, तो मोल फ्रैक्शन आ गया 1/3. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट कितना लिया हमने 2 मोल्स, टोटल मोल्स कितना है 1 plus 2 दैट इज अगेन 3. ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन A का कितना है 2/3 और मोल फ्रैक्शन B का कितना है 1/3. नाउ इफ आई ऐड द टोटल, दोनों को सम अप करें XA प्लस XB तो क्या हो जाएगा, XA का वैल्यू कितना था 2/3 और XB का वैल्यू कितना है 1/3. दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा 3/3 विच इज इक्वल टू 1. सो यहां से क्या एक पॉइंट निकल कर आता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस है ना, 3 टोटल मोल्स है, 3 में से 1 पार्ट इसका है 2 पार्ट्स इसके हैं, तो जब हम टोटल करेंगे तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस कितना आ जाएगा 1. सो रिमेंबर सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है, सपोज इफ आई नो XB, आई नो XB इज 1/3, सो आई कैन कैलकुलेट XA. तो हम XA कैलकुलेट कर सकते हैं, XA विल बी इक्वल टू 1 minus XB. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन we can find the mole fraction of the other component. Instead of using number of moles and then finding this ratio, we can directly subtract from 1. So 1 minus XB is equal to XA. समझ आ गया, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस 1 है, तो अगर हमें XB की वैल्यू पता है तो वहां से हम XA फाइंड कर सकते हैं. टेक दिस टू द अदर साइड, 1 minus XB is equal to XA. है ना, अगर XA पता है तो 1 minus XA will give us XB. Okay. Then another important point is the ratio of mole fractions. अगर हम मोल फ्रैक्शंस का रेशियो निकालते हैं, if I write it as XB upon XA, तो हमारे पास क्या बचता है, देखो XB का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल, टोटल क्या हुआ A प्लस B, और XA का फॉर्मूला क्या है, XA का यहाँ पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल दैट इज Na प्लस Nb. तो ये जो टोटल मोल्स है तो सेम है, इफ यू सी यहाँ पर भी 3 मोल्स थे, यहाँ पर भी 3 है. ठीक है, तो अगर मैं XB को XA से डिवाइड करूं तो ये 3 तो कट जाएगा ना, दिस 3 विल कैंसिल आउट. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इफ आई डिवाइड XB बाय XA तो क्या है, ऊपर 1/3 है और यहाँ पर क्या है 2/3. सो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/2. अब ये 1 और 2 क्या है, 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B था और 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है. सो जब हम मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ जाता है. टोटल मोल्स विल कैंसिल आउट एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विद, Nb अपॉन Na. ठीक है, सो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस is equal to the ratio of their number of moles. Is this clear? Ratio of mole fractions of solute to solvent. अगर B हमने assume किया solute
और A सॉल्वेंट. सो मोल फ्रैक्शंस का जो रेशो होता है सोल्यूट टू सॉल्वेंट का, दैट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B to A. A and B are the solute and solvent. Okay. So ratio of mole fraction is equal to the ratio of their number of moles. This is another important analysis जो हम questions में use कर सकते हैं. अगर हमें mole fraction पता है तो उसको हम number of moles की जगह use कर सकते हैं. Yes, is this clear? Okay. Let me give you a simple question. Twenty gram of sodium hydroxide is dissolved in 90 grams of water. Find the mole fraction of the solute and solvent. Find the mole fractions of the solute and solvent. 20 grams of sodium hydroxide is dissolved in 90 grams of water. Find the mole fractions of solute and solvent. So how will we proceed? Mole fraction of solute. कम वाला कौन सा है? 20 कम है ना, तो ये solute होगा. 90 तो ज्यादा है, तो this must be solvent. So mole fraction of sodium hydroxide अगर हमें निकालना है तो क्या करना है? Number of moles of sodium hydroxide divide by total moles. So total मतलब moles of solute plus moles of solvent. अब number of moles का क्या formula है? How do we find the number of moles? So number of moles कैसे निकलता है? तो पहले हमें क्या करना है? Number of moles निकालना है. ठीक है? So what is the formula to find the number of moles? Number of moles is equal to given mass of solute upon molecular mass. अब अगर हमें number of moles of sodium hydroxide निकालना है तो हमें mass भी sodium hydroxide का लेना है और molecular mass भी sodium hydroxide का. Mass of sodium hydroxide is given in the question 20 grams और molecular mass कहाँ से find करेंगे? Formula से. ठीक है? So what is the molecular mass of sodium hydroxide? सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1. तो ये ऐड करके कितना हो गया? 17 plus 3, 20 and 20, 40. So what is the molecular mass of sodium hydroxide? You have to calculate it from the sum of atomic masses. Atomic mass सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1. Add it up, molecular mass कितना आ गया? 40. Substitute it here. So given mass divided by molecular mass. This gives us the number of moles of sodium hydroxide. So 1 by 2, that is 0.5. ठीक है? So number of moles पता चल गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के. इसी तरह से number of moles water के निकालेंगे. So mass of water divided by molecular mass of water. Mass of water is given in the question, that is 90. And molecular mass कहाँ से निकलेगा? Again from the formula. So molecular mass of H2O. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है. There are 2 atoms. So 2 atoms के लिए twice हो जाएगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16. 16 plus 2, 18. ठीक है? So molecular mass is 18 grams. So we put it here. 90 grams divided by 18 grams. So this gives us 5. ठीक है? अब हमें number of moles पता चल गया. Number of moles sodium hydroxide का कितना है? 0.5 and that of water is 5. Now we can substitute. Number of moles of sodium hydroxide is 0.5 divided by total
वाटर का 5 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.5 है, तो 5 + 0.5 इज 5.5। ठीक है, डेसिमल कैंसिल हो गया, सो 1/11। So what is the mole fraction of sodium hydroxide? 1/11. You can solve it further. तो 0.09 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का पता चल गया। सो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? इट विल बी मोल फ्रैक्शन और वाटर विल बी 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया है तो 1 - करके दूसरे का निकाल सकते हैं, राइट। So जाके is this clear? So how do we find the mole fractions? Number of moles of a component to total moles, and total moles में क्या आएगा? solute plus solvent, right? अब जब number of moles निकालना है तो given mass को उसके molecular mass से divide करेंगे। given mass क्वेश्चन में given होता है, ठीक है। molecular mass कहाँ से calculate करना है? from the formula sum of atomic masses is equal to molecular mass. So given mass divided by molecular mass gives you the number of moles, and once you know the number of moles, then substitute in the formula and we can calculate the mole fractions. Okay. Achha. So other concentration terms other than the mole fraction are molarity and molality. So molarity is another way of expressing the amount of solute, है ना। तो amount of solute जब हम molarity की terms में करते हैं, so molarity का जो symbol है that is capital M, and molarity को कैसे define करते हैं? यहाँ पर हम amount of solute को number of moles की terms में लेते हैं, ठीक है। The amount of solute is expressed in terms of moles. So molarity is defined as the number of moles is defined as the number of moles of solute present in 1 liter volume of solution। 1 liter volume of solution। तो यहाँ पर हमने amount of solute किस में लिया? moles की terms में, ठीक है। और कितना quantity of solution लिया? 1 liter। So 1 liter solution के अंदर कितना amount of solute है? That is molarity, right? So यहाँ amount को हम moles की terms में ले रहे हैं और एक specific amount of solution में उसको express कर रहे हैं 1 liter। So the formula is written like this: number of moles of solute divided by volume of solution in liters। अगर volume of solution आपको question में मिलीलीटर्स में दिया है तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इफ इट इज गिवन इन मिलीलीटर्स देन डिवाइड बाय 1000। तो नीचे जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी हमने फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये मैंने किसकी जगह लिखा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह आई हैव रिटन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इफ इट इज इन मिलीलीटर्स देन वी मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब वी डिवाइड द वॉल्यूम बाय 1000 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना? देखो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000, ठीक है। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल एम वी यूज फॉर मोलारिटी एंड कैपिटल एम वी आल्सो यूज फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है।
बट यहाँ पर सल्यूट की जगह आप कुछ सिंबल यूज कर सकते हो, जैसे ए या बी. So molarity is capital M, and for molecular mass also we use capital M, but generally solute के साथ हम B लगा देते हैं. So MB upon capital MB, like that. So if I know the mass of solute and I know the volume of solution, I can find molarity, right? If I know the mass of solute and I know the volume of solution in milliliters, I can find molarity. For example, calculate the molarity of sodium hydroxide in solution prepared by dissolving 4 grams of sodium hydroxide in enough water to form 250 ml of solution. Okay, so I am giving you it in short. 4 grams of sodium hydroxide is dissolved in enough water so that the final volume of solution is 250 ml. So 4 grams of sodium hydroxide को इतना water में dissolve किया कि final volume of solution कितना है 250 ml. So find molarity. So what we will do? Mass of solute is given to us 4 grams. Molecular mass of sodium hydroxide we just calculated. What was that? 40. In the previous question we calculated. So molecular mass of sodium hydroxide is 40. Volume of solution is given in milliliters. तो यहाँ पर 250 ml आ गया. अब क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 250 4 टाइम्स, राइट, 4 10 टाइम्स. सो व्हाट आई विल लेफ्ट विद 4 by 10, दैट इज 0.4 मोलर. मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? देखो, मोल्स पर लीटर हम एक्सप्रेस करते हैं. सो आइदर वी कैन राइट हियर 0.4 मोल्स पर लीटर. व्हाट वी कैन राइट एज द यूनिट 0.4 मोल्स पर लीटर. और वी मे यूज कैपिटल एम. कैपिटल एम का मतलब भी क्या होता है? मोलर. 0.4 मोलर. ठीक है, तो या तो हम 0.4 मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं या फिर 0.4 के साथ कैपिटल एम लिख सकते हैं. सो बोथ आर करेक्ट. 0.4 मोल्स पर लीटर और 0.4 मोलर फॉर कैपिटल एम. कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलारिटी, मोलर. Yes? Okay, let's quickly see one more formula. Another way to express the solute is in terms of molality. For molality, we use small m. ठीक है, अब वहां पर भी जो अमाउंट ऑफ solute है वो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में ही लिया जाता है, लेकिन वॉल्यूम की जगह ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम की जगह हम क्या लेते हैं? मास. ठीक है, 1 kg वेट ऑफ, और सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट. सो जो लास्ट लाइन है उसमें चेंज आया. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ओनली, राइट. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. सो मोलालिटी, मोलर भी बोलते हैं इसको, स्मॉल एम. तो कहीं पर भी स्मॉल एम लिखा है, लाइक 1 विद स्मॉल एम, we read it as 1 molar solution. ठीक है, कैपिटल एम होता है तो मोलर और स्मॉल एम होता है तो एल, मोलर solution. So it is defined as number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. Present in 1 kilogram of solvent. है ना, the definition you can directly write 1 kilogram of solvent. तो क्या फर्क आया? What is the difference? The difference is यहाँ पर सोल्यूशन की जगह हम सॉल्वेंट ले रहे हैं और वॉल्यूम की जगह मास ले रहे हैं एज कंपेयर टू मोलारिटी, राइट. तो दो चीजों का फर्क है. मोलारिटी में हम सोल्यूशन लेते हैं, मोलारिटी में सॉल्वेंट, और वॉल्यूम की जगह यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन, राइट. सो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द फॉर्मूला? क्विकली सी दिस.
नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिस पार्ट विल रिमेन सेम. सो व्हाट विल बी डिफरेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट टू इन केजी, राइट. So molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kilograms. So number of moles की जगह हम लिख सकते हैं mass upon molecular mass, और mass of solvent अगर आपको ग्राम्स में दिया है तो उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, we divide by 1000. ठीक है. So if the mass of solvent is given in grams, we divide by 1000, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से. So if you see the difference, सिर्फ यहाँ डिफरेंस आ रहा है, mass of solvent. Mass of solvent in grams will be taken instead of volume of solution. Yes, is the difference clear? So what will be the unit? Number of moles का मोल होता है unit, और mass का क्या है, kg. So mole per kg. This will be the unit for molality. So अगर कहीं पर भी दिया है 1 small m, तो इसका मतलब क्या है, 1 molar solution, और we can say 1 mole of solute is present in 1 kg solvent, है ना. तो 1 small m का मतलब है moles per kg. So small m दिया है या moles per kg means the same thing. So if in a question they give you small m, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है कि 1 mole of solute is present in 1 kilogram of solvent. ठीक है. सो हमें 1 मोल, यहां से दो चीजें पता चल रही है, एक तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट 1 मोल है, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg.